ایک ایسی مخلوق جو ابھی زندہ ہے, ابھی اس دھرتی پر موجود ہے. اس کی ایک آنکھ نہیں مگر وہ دیکھتا ہے. تم کون ہو؟ میں تمہارا رب ہوں اور میری بات مانو. اس کے پاس ابھی موت نہیں مگر وہ قید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر وہ نبی جو دنیا میں آیا اس نے اپنی امت کو ایک بڑے فتنہ دجال سے خبردار کیا. حضرت نوح نے بھی, اے میری امت, دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے خبردار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. حضرت ابراہیم نے بھی, اے میری امت خبردار ہو جاؤ, دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اس کے دھوکے سے بچو. حضرت موسیٰ نے بھی, اے میری امت خبردار ہو جاؤ, دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بچو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, سب سے تفصیل سے دجال کا ذکر فرمایا. رکو, سوچو. ہر وہ نبی جو دنیا میں آیا اس نے اپنی امت کو ایک بڑے فتنہ دجال سے خبردار کیا. اور جب وہ نکلے گا تو دنیا کیا دیکھے گی؟ آج ہم وہ راز کھول رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. دجال کے ساتھ آزمائش اور سخت امتحان ہوگا. دجال کا معنی ہے جھوٹا یا دھوکہ دینے والا. وہ آخری زمانے کا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا. ذرا سوچیں, لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آنے والے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ, جنگیں, وبائیں, ظالم بادشاہ, یہ سب مل کر بھی دجال کے فتنے کے برابر نہیں ہوں گے. دجال کی پہچان, وہ ایک آنکھ والا انسان ہوگا. اس کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی جیسے ایک ابھرا ہوا انگور, اور اس کی پیشانی پر کاف ف ر یعنی کافر لکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لکھائی ہر مومن پڑھ سکے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے. دجال کا دعویٰ, وہ پہلے کہے گا, میں نبی ہوں, میں رب ہوں. وہ انسانوں کو بھوک سے بے حال دیکھے گا اور کہے گا, دیکھو کیا تمہارا رب تمہیں بھوکا مارتا, میں تمہارا خدا ہوں, میرے سامنے سجدہ کرو. اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی, یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال جسے جنت کہے گا در حقیقت وہ آگ ہوگی, اور جسے آگ کہے گا اصل میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. جو مومن اس کی آگ میں کود جائے گا وہ سکون پائے گا. دجال کے کرتب, وہ زمین کو حکم دے گا اور سبزہ اگے گا. وہ بارش برسائے گا اور لوگ دیکھیں گے. وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا, اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ اور دجال کے ساتھ موجود دو شیطان اس نوجوان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے, بیٹا اس کی بات مان لو, یہی تیرا رب ہے. یہ ہے دجال کا فتنہ, جھوٹ کا وہ جادو جو آنکھوں کو دھوکہ دے گا. اب وہ سوال جس کا جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں, کیا دجال ابھی موجود ہے؟ ہاں, وہ زندہ ہے اور قید ہے. اور ہمیں یہ بات کسی اندازے سے نہیں بلکہ ایک صحابی کی آنکھوں دیکھی گواہی سے معلوم ہے. ہجری سال شروع ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا. صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, جو اس وقت تک عیسائی تھے, اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر پر نکلے. سمندر کی لہروں نے ان کے جہاز کو کھلونے کی طرح اچھالا. پورا 1 مہینہ وہ زندگی اور موت کے درمیان بھٹکتے رہے. پھر سمندر خاموش ہوا اور ان کا جہاز ایک ایسی جگہ جا لگا جہاں انسانی قدم صدیوں سے نہیں پڑے تھے. ایک ویران خاموش جزیرہ, 30 لوگ, ایک انجان ساحل, اور ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی. یہ لوگ تھکے ہوئے تھے مگر انہیں سکون نصیب نہیں ہونا تھا. اچانک ایک چیز ان کی طرف بڑھی. وہ کوئی جانور نہیں تھا مگر انسان بھی نہیں لگ رہا تھا. تمیم داری نے پوچھا, تم کون ہو؟ میں خبریں جمع کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ اس عمارت میں چلو, ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے.
और फिर तमीमदारी की नजर उस पर पड़ी। एक आदमी कदो-कामत में पूरा, जिस्म मजबूत मगर हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए। अचानक उसने सर उठाया। एक आंख बिल्कुल बेनूर, दूसरी आंख उभरी हुई जैसे अंगूर का दाना। उसने पूछा, तुम कहां से आए हो? हम अरब के रहने वाले हैं। समंदर ने हमें यहाँ फेंक दिया। फिर उसने सवालात शुरू किए। क्या बैसाने फलस्तीन के दरख्त अभी भी फल दे रहे हैं? हाँ, वो वक्त दूर नहीं जब एक फल भी नहीं लगेगा। मुझे तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? हाँ, पानी से भरी हुई है। जल्द वो सूख जाएगी और लोग वहां मट्टी में हाथ मारेंगे। जुगर के चश्मे के बारे में बताओ, वहां से खेती बाड़ी होती है। हाँ, मगर अब मेरी सुनो, मैं ही अल मसीह दज्जाल हूँ। मुझे निकलने की इजाजत मिलने वाली है। फिर उसने आखिरी सवाल किया और इस सवाल में बेचैनी थी, तड़प थी। वो आखिरी नबी जो मक्का में पैदा हुए, उनका क्या हुआ? वो मदीना जा चुके हैं। अरब ने उनसे जंग भी की और अब उनकी इताअत कर रहे हैं। ये सुनते ही दज्जाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दहशत थी। और उसने कहा, उनका उनकी बात मान लेना ही उनके लिए बेहतर है। मगर अब मेरी सुनो, मैं ही अल मसीह दज्जाल हूँ। मुझे निकलने की इजाजत मिलने वाली है। मैं जमीन पर निकलूंगा और 40 दिन में कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी जहां मेरे कदम ना हो। मैं हर शहर को रौंद डालूंगा सिवाय तैयबा और मक्का के। जब भी वहां घुसना चाहूंगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि सहाबा ने महसूस किया अगर एक लम्हा और रुके तो जंजीरें इन्हें भी जकड़ लेंगी। अल्लाह के करम से वही लहरें जो उन्हें भटका कर ले गई थीं, वही उन्हें वापस अरब के साहिल तक ले आईं। तमीमदारी रदी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त तक ईसाई थे, उनका दिल बदल चुका था। वो सीधे मदीना की तरफ दौड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए, कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने वो सब बताया जो उन्होंने उस गुमनाम जजीरे पर देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में जमा किया और फरमाया, तमीमदारी की बात मेरी बताई हुई बातों के बिल्कुल मुताबिक है। ये मशरिक में है, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है। वो जजीरा, वो जंजीरें, वो कैद आज भी मौजूद है। दजाल इंतजार कर रहा है अपने वक्त का। क़यामत के करीब जब दुनिया फितनों में घिर जाएगी, दज्जाल अपनी कैद से निकल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल तक बारिश नहीं होगी। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 रोक लेगा, तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी। लोग भूख से मरने लगेंगे, एक एक नवाले को तरसेंगे। जब जमीन मुकम्मल खुश्क हो जाएगी, तब वो जाहिर होगा, एक हाथ में रोटियों का पहाड़ लिए, दूसरे में पानी की नहरें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुरासान की तरफ से आएगा। उसके साथ 70,000 यहूदी सिपाही होंगे, सर पर ताज पहने हुए। वो पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इनके हर दरवाजे पर फरिश्ते नंगी तलवारें लिए खड़े होंगे। उसके पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, मगर जैसा हमने बताया वो असल में उल्टी होगी। वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने का दिखावा करेगा, वो बारिश बरसाएगा, वो फसलें उगाएगा। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों की तरह। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस लम्हे दिन में 1 दिन की नमाज काफी होगी? नहीं, हिसाब लगाकर नमाज अदा करना। सही मुस्लिम। सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक तफसील दी। इतनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, मगर अल्लाह ने दज्जाल के खात्मे का इंतजाम सदियों पहले कर दिया था। वो नबी जिन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था, वो लौट कर आएंगे। दज्जाल दिमिश्क तक पहुंच जाएगा, मुसलमान किला बंद हो जाएंगे। अचानक आसमान के बादल फटेंगे। दिमिश्क की जामिया मस्जिद के सफेद मीनार पर 2 फरिश्ते उतरेंगे। उनके पंखों पर हाथ रखे हुए एक हस्ती नुज़ूल फरमाएगी।
जिनके बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे। सफेद लिबास, रोशन चेहरा, वो होंगे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, कले का दरवाजा खोलो। बाहर दज्जाल अपने अजीम लश्कर के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसका जिस्म नमक की तरह पिघलने लगेगा। वो भागेगा। दुनिया को डराने वाला, खुदाई का दावा करने वाला खुद मौत से भागेगा, मगर दज्जाल को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पत्थर और दरख्त पुकारेंगे, ये काफर यहां छुपा हुआ है, आकर मार दे। बिलाखिर लुद के मकाम पर फलस्तीन के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान लश्कर के साथ उसे दबोच लेंगे। अहदीस में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे और कहेंगे, आज तेरा वक्त खत्म हुआ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खून लोगों को दिखाएंगे ताकि सब जान लें खुदा कभी मरता नहीं, और ये जो मरा पड़ा है ये सिर्फ एक काना इंसान था। दज्जाल मारा जाएगा, जुल्म खत्म होगा। मगर एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए तो क्या हम उसकी रोटी चुनेंगे या अपना ईमान? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने के साथ बचने का रास्ता भी बताया। ये कुरान पाक की 18वीं सूरा है, सूरतुल कहफ, जो पारा 15 और 16 में आती है। इस सूरा में असहाबे कहफ का वाकया है। वो नौजवान जिन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, और यही सूरा हमें दज्जाल के बातिल से बचाएगी। सही मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम और सुनन निसाई में आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र आता है। इसलिए उलमा कहते हैं, पूरी सूरतुल कहफ पढ़ना और उसे समझना ही असल हिफाजत है। और ख़ास बात यह है, हर जुमे को सूरतुल कहफ पढ़ना दज्जाल के फितने से बचने का मुस्तकिल जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे चारों तरफ झूठ का अंधेरा हो तो सूरतुल कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि जिसके सीने में ये सूरा होगी उस पर दज्जाल का कोई धोखा असर नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ आयतें नहीं, मोमिन की ढाल है। दूसरा तरीका, ये दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया, ये वो अजीम दुआ है जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई दज्जाल के खतरनाक फितने से बचने के लिए। ये दुआ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे जरूर पढ़ें और अपनी हिफाजत का जरिया बनाएं। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से, और मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये दुआ आज से शुरू कर दें, हर नमाज में तशहुद के बाद। तीसरा तरीका, दज्जाल से दूर भागना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का सुनो तो उससे दूर भागो, उसके पास मत जाओ, क्योंकि जो उसके पास जाएगा उसकी आंखें धोखा खाएंगी। जो उससे दूर रहेगा उसका ईमान महफूज रहेगा। याद रखें, आखिर में न ताकत काम आएगी न लश्कर, सिर्फ और सिर्फ ईमान। जब दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा, लोग समझेंगे अब सुकून आ गया, मगर नहीं। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाएंगे, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। और फिर याजूज माजूज निकल आएंगे। वो जमीन पर इस तरह फैल जाएंगे जैसे कभी कोई रुकावट थी ही नहीं। समंदर पिएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहां कभी पानी था ही नहीं। दुनिया एक बार फिर इंसानी बस से बाहर हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में तफसील हमारी अगली वीडियो में आएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है। आज हम जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि इन आने वाले फितनों से गाफिल हो गए हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब बताया ताकि हम तैयार रहें। दज्जाल अभी कैद है। मगर जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, झूठ, दिखावा, गुमराही, क्या वो दज्जाली फितना पहले ही नहीं आ चुका? आज से 3 काम शुरू करें। 1.
हर जुमे को सूरतुल कहफ पढ़ें। 2. हर नमाज में दज्जाल से हिफाजत की दुआ मांगे। 3. दज्जाल के बारे में पढ़ें ताकि उसके फितने को पहचान सकें, क्योंकि जिस दिन दज्जाल निकलेगा सिर्फ सच्चा ईमान ही बचाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नया इल्म लेकर आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे अपने घर वालों को, दोस्तों को शेयर करें